السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، طویل آزمائش کن سے فیکن تک کا سفر کبھی دے کر تو کبھی لے کر آزمایا جاتا ہے۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، وہ اپنے کن کا جلوہ صبر کرنے والوں کو دکھاتا ہے۔ جب قبولیت کا وقت آتا ہے، جب خدا کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے، یا پھر جب نصیب میں لکھا تمہیں ملنا ہوتا ہے، رب فرماتا ہے کن فیکن ہو جا، اور پھر ہو جاتا ہے۔ اور اس لمحے میں آسمان، ستارے، چاند، سورج، وقت، قسمت، ہوائیں، بادل اور بارشیں، کائنات کی سازش اور شاید دنیا کا ہر ایک ذرہ مل کر تمہیں تمہاری منزل تک کھینچ لاتے رب کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ ہو کر رہتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جب کن سے فیکن کی لڑی ملتی ہے، پھر لمحوں میں تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ اگر اس نے کن نہ کہنا ہوتا تو وہ تمہارا انتظار اب تک ختم کر چکا ہوتا۔ اس کی دسترس میں کن بھی ہے، فیکن بھی۔ ایسا کوئی کام نہیں جو ہمارا رب نہیں کر سکتا۔ جب وہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیکن کرنے کے لیے متحر ہو جاتی ہیں۔ جب تم اللہ پاک کی چاہت پر سر جھکاؤ گے، پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے بھی کن کہہ دے گا۔ کسی سے محبت کرو تو اتنی پاکیزہ کرو کہ رب بھی کہے کن فیکن ہو جا۔ جب وہ معجزے کرنے پر آتا ہے تو ساری کائنات کن فیکن کی تسبیح کرتی ہے۔ میری بے بسی کا عالم تیرے کن کا منتظر ہے، میرے مہربان دکھا دے کن کا نظارہ۔ رب کن کہے گا، پھر ہر دعا قبول ہو جائے گی، کوئی دکھ اور بے شک باقی نہیں رہے گی۔ کن کا معاملہ صرف اتنا ہے، میرا رب کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ مجھے کن فیکن کے نام سے ہے عشق۔ ساری باتیں اسی نقطے پر آ کر رک جاتی ہیں جب اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اگر تمہاری زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ پاک اللہ پاک کا انکار نہیں ہے، یہ تو قبولیت کا اشارہ ہے۔ جانتے ہو اللہ پاک تمہارے لیے مدد کب بھیجتا ہے؟ جب تم صبر دکھاتے ہو، جب تم اللہ پاک کی مصلحت کو سمجھتے ہو۔ دعا کرتے رہو اور یاد رکھو، ایسا کچھ بھی نہیں جو اللہ پاک بدل نہیں سکتا، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب اللہ پاک ایک راہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 اور راہیں کھول بھی دیتا ہے۔ اللہ پاک کب تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے تمہیں تو یہ خبر بھی نہیں۔ تم یہ یاد رکھنا، جتنی بار اللہ پاک سے دعا مانگو گے وہ سب دعائیں آسمان پر اکٹھی ہوتی جائیں گی۔ تمہارا کام یہ ہے تم اتنی دعائیں مانگو کہ آسمان بھر جائے، اور تمہیں ایسا مقدر عطا کیا جائے کہ تمہاری زبان شکر سے بھر جائے۔ ہو سکتا ہے ان سب دعاؤں کو اکٹھا کر کے تمہارے مقدر کو بدل دیا جائے۔ کیا پتا تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو، کیا پتا اللہ پاک تمہاری کہانی معجزوں سے مکمل کرنے والا ہو۔ ممکن ہے کہ اگلے پل تمہاری دعا کو کن کا پروانہ مل جائے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ پاک نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ پاک تم تک ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ آزمائش سے گزار رہا ہے۔ اللہ پاک جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو، تم کب سے رو رہے ہو۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے نواز سکتا ہے۔ اسے معلوم ہے تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہے ہو۔ یاد رکھنا، صبر کرنے والوں کو اللہ پاک بہت خاص رکھتا ہے۔ قسمت بے شک اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا حق اس نے ہمیں دیا ہے، اور جب حق دیا ہے تو قبول بھی ضرور کرے گا۔ یقین رکھیں کوئی بھی دعا ضائع نہیں جاتی، ہر دعا اللہ پاک کے پاس محفوظ ہوتی ہے، جس پر وہ بہترین وقت پر قبولیت کا کن فرما دیتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ پاک خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے، بس اس اظہار کے لیے کہ اللہ پاک تیرا بندہ بہت کمزور ہے اور تیرے ایک کن کا محتاج ہے۔ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھنا وہ کن کہے گا اور بہت جلد کہے گا، تو پھر اس کے کن سے مایوس مت ہو، اور پھر سوچو وہ کتنا پیار کرتا ہوگا تم سے۔
वो जिसने माँ को बनाया है, सोचो वो खुद कैसा होगा। जिसकी मोहब्बत से अल्लाह पाक ने खुद को मोहब्बत की तस्वीर दी है, उस माँ के मुंह से निकली हुई एक दुआ का तो सारी दुनिया मिलकर भी मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि माँ की दुआएं मुकद्दर मोड़ देती हैं। और जो नसीब से नहीं मिल सका, देखना अल्लाह पाक वो भी तुम्हें अता कर देगा। देखना अल्लाह पाक जल्द ही कुन कह देगा और एक पल में सिमट जाएगा तुम्हारा टूटा हुआ बिखरा हुआ वजूद। देखना इस सब्र का सिला अल्लाह पाक जल्दी तुम्हें अता कर देगा। देखना इस अंधेरे में अल्लाह पाक की रहमत की रोशनी पैदा कर देगा। देखना इस मुश्किल के बाद अल्लाह पाक तुम्हारा वक्त बदल देगा। देखना इस आजमाइश के बाद ख्वाहिश पूरी होगी। देखना इस बेबसी के बाद अल्लाह पाक हर नामुमकिन को मुमकिन कर देगा। देखना इस दुआ के बाद तुम्हारे लिए कबूलियत की खुशखबरी होगी। अल्लाह पाक तुम्हारी ऐसी मदद करेगा कि तुम खुद भी हैरान रह जाओगे। तुम बस एक लम्हे को रोते हो, तुम्हारी दुआएं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। तुम अपने इस टूटे हुए दिल पर गम ना करो, क्योंकि जिसने इसे बनाया है इस दिल को मोड़ भी सकता है और फिर से जोड़ भी सकता है। तो फिर कभी यह मत सोचना कि अल्लाह पाक ने तुम्हारी दुआएं रद्द कर दी। उसने हर पुकार सुन ली है। उसने बस अता करने का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। हो सकता है तुम्हारी आजमाइश के आखिरी लम्हा हो। परेशान क्यों होते हो? जो तुम्हारे पास अल्लाह पाक है वो कुन का मालिक है, मौजूदों का बादशाह है। गम किस बात का जब अल्लाह पाक ने तुम्हें दुआ का इख्तियार दे रखा है। तुम मांगो तो सही, वो तो तुम्हें नवाजने के लिए तैयार है। अल्लाह पाक बेखबर नहीं तुमसे, उसका तो तुम्हारे दिल में बसेरा है। तुम सोचो कोई तो बात है जो तुम्हारा दिल इतने आंसू बहाने के बाद भी मुतमैन हो जाता है। कुछ तो बेहतर लिखा हुआ है अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए, इसलिए तो तुम्हारा दिल सब्र करने पर मजबूर है। वो तो पल में नसीबों को बदल सकता है और लम्हों में दिलों को मोड़ सकता है। मौजूदों की राह तो अल्लाह पाक आखिरी सांस तक खुली रखता है। देखना जल्द ही अल्लाह पाक तुम्हारे तड़पते हुए दिल को सुकून से भर देगा। देखना जल्द ही अल्लाह पाक तुम्हारे लिए अंधेरों से उजाले पैदा कर देगा। देखना जल्द ही अल्लाह पाक तुम्हारी खाली झोली अपनी रहमतों से भर देगा। देखना जल्द ही अल्लाह पाक तुम्हारा मुकद्दर लम्हों में बदल देगा। देखना जल्द ही अल्लाह पाक तुम्हारी मर्जी को ही तुम्हारा मुकद्दर बना देगा। देखना जल्द ही अल्लाह पाक तुम्हारी नामुमकिन दुआओं पर कुन कह देगा। जिसने मुकद्दर लिखा है उसके पास मुकद्दर बदलने के भी इख्तियार हैं। नामुमकिन सिर्फ नामुमकिन तुम्हारे लिए अल्लाह पाक की पहुंच में तो सारे मौजूदात हैं। जो दरवाजे तुम्हें बंद नजर आ रहे हैं उन तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है। बस उन तक पहुंचने का रास्ता तुम्हारे सोचे हुए रास्ते से अलग है। आजमाइश के बाद तुम्हारी दुआओं के लिए कबूलियत का मौजज़ा है। अल्लाह पाक बेखबर नहीं, वो जानता है तुम उसे कितनी बार पुकारते हो। इस तकलीफ के बाद तुम्हारे लिए तुम्हारे सब्र का बहुत बड़ा सिला है। वो कैसे तुम्हारे दिल को तड़पता हुआ छोड़ सकता है, जिसके एक कुन ने लाखों दिल जोड़ रखे हैं। उसके लिए तुम्हारा मुकद्दर मोड़ना क्या मुश्किल है। जिसने मशरिक और मगरिब मोड़ रखे हैं तुम्हें भी समेट लेगा, जैसे उसने दोनों जहां समेट रखे हैं। आजमाइश का वक्त लंबा नहीं हुआ, उसने तो बस तुम्हें का वक्त बढ़ा दिया है। जब नामुमकिन हालात के बावजूद तुम दुआ मांगना नहीं छोड़ते, जब तुम अल्लाह पाक पर कामिल यकीन रखते हुए दुआएं करते रहते हो, तो अल्लाह पाक कहीं न कहीं से तुम्हारे लिए वसीला बना ही देता है। और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह पाक न चाहे। तुम्हारा दुआओं पर जमे रहना अल्लाह पाक की रजामंदी का इशारा हो सकता है। अल्लाह पाक पर भरोसा करो, क्योंकि उसके सुपुर्द जो काम कर दिया जाए वो उसके लिए काफी है। जब तुम गम से परेशान होते हो, जब तुम अल्लाह पाक से दुआएं करके आंसू बहाते हो, जब तुम्हें लग रहा होता है कि सब कुछ खत्म हो गया, जब तुम्हें लग रहा होता है कि तुम्हारी दुआओं को सुना नहीं गया, जब तुम्हें लग रहा होता है कि अब जवाब नहीं आएगा, तब अल्लाह पाक तुम्हें देख रहा होता है, तुम्हारी दुआओं को सुन रहा होता है। वो मुस्कुराता होगा तुम्हें दुआ मांगता देखकर कि मेरा बंदा मुझे कितने प्यार से बुला रहा है, कितनी मोहब्बत से दुआएं मांग रहा है। और अगर तुम्हें पता लग जाए कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए क्या अजर रखा है, तो तुम्हें किसी चीज का गम नहीं होगा। तुम्हें आजमाइश छोटी लगने लगेगी और अल्लाह पाक की मोहब्बत गालिब आ जाएगी। मगर हर चीज का एक वक्त अल्लाह पाक ने मुकर्रर कर दिया है, तो तुम भी दुआ करो और बेहतरीन वक्त का इंतजार करो और नसीब से मत घबराओ। वो तो अल्लाह पाक के हाथ में है, जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। उस पर यकीन रखने वाले फिर कभी मायूस नहीं हुआ करते। उस पर यकीन रखने वालों के लिए फिर मोजज़े हुआ करते हैं। सब्र करते हैं जो फिर उन पर
उसकी चाह से भी बेहतरीन नवाजा करता है कि रब से मोहब्बत करने वालों के दिल रब पहले से भी मजबूती से जोड़ दिया करता है। यकीनन कोई बड़ा मौजज़ा है तुम्हारे लिए, इसलिए अल्लाह पाक ने अब तक इंतजार से थकने नहीं दिया तुम्हें। अगर अल्लाह पाक आपको इंतजार करवा रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो आपको सजा दे रहा है, बल्कि वो आपसे कुछ देर तक राब्ते में रहना चाहता है। वो चाहता है कि आप मजीद दुआएं करें, वो चाहता है कि आप उससे बात करें, वो आपकी आवाज़ बार बार सुनना चाहता है। इसलिए वो आपको वो चीज़ नहीं दे रहा और उसी वजह से वो उस चीज़ का ख्याल आपके दिल और दिमाग से नहीं निकाल रहा। तुम खुद उसके इशारे का इंतजार कर रहे हो, फिर जब वो तुम्हें बाज इशारा दे रहा है तो तुम उसकी बात क्यों नहीं सुनते? वो आपसे छीन भी नहीं रहा और आपके करीब भी नहीं आने दे रहा, तो इसका मतलब है कि वो आपकी दुआ का इंतजार कर रहा है ताकि वो आपकी दुआओं का जवाब अपने कुन से दे। तो आप क्यों उदास हैं, तुम क्यों मायूस हो? बस अपने आप को कुछ वक्त दें और उस वक्त तक दुआ करना बंद ना करें जब तक वो कुन ना कह दे। जानते हो मोजज़े कैसे होते हैं? जब तुम अल्लाह पाक पर अंधा यकीन रखते हो और जल्दबाजी नहीं करते, तब अल्लाह पाक तुम्हारे लिए छोटे छोटे जरिए बनाता है और फिर रफ्ता रफ्ता तुम्हारे कदमों को उन्हीं जरियों की तरफ मोड़ने लगता है। फिर वो छोटे छोटे जरिए तुम्हें तुम्हारी दुआओं की कबूलियत तक ले जाती हैं और तुम कदम ब कदम उसके कुन की जानिब बढ़ते चले जाते हो। मोजज़े कभी भी अचानक से नहीं होते, मोजज़ों के लिए तुम्हें आजमाइश से गुजारा जाता है और फिर वो आजमाइश ही तुम्हें उन हैरत अंगेज मुकामात तक ले जाती है जहाँ कुन फरमा दिया जाता है और तकदीर बदल दी जाती है। तुम्हें यूँ हर बार यकीन आ जाना, तुम्हारे दिल में हर बार उम्मीद का आ जाना और फिर तुम्हारा दुआएं मांगना इस बात की दलील है कि अल्लाह पाक के दर से मदद जल्द तुम तक पहुंचेगी। मोजज़ात की सूरत में तुम्हें लगता है कि यह नामुमकिन है, फिर भी मुसलसल उसी दुआ का मांगना यह कबूलियत की निशानी नहीं तो और क्या है। तो दुआ मांगते रहो जब तक अल्लाह पाक की मदद नहीं आ जाती, क्योंकि तुम्हारा और हजरत जकरिया का अल्लाह एक है। जिसने हजरत जकरिया को औलाद दी उम्र के आखिरी हिस्से में, वो तुम्हारे लिए भी मोजज़ा करेगा। अगर मोजज़े चाहते हो तो अल्लाह पाक की कुदरत पर, उसके फैसलों पर और उसकी रहमत पर अंधा एतमाद कर लो। जब दिल में वसवसे नहीं होंगे तब अल्लाह पाक मोजज़ों की बरसात कर देगा। दिल में रहने वाला रब दिल में उतरता तभी है, दिल में उतरती दुआएं भी जानता है। वो मिलने के खुद रास्ते दिखाता है। तो तुम मांगने की तरकीबें सोच लेते हो, वो तुम्हें खुद झोली फैलाना सिखाता है। तो ही तो तुम जान पाते हो कि मोजज़े भी होते हैं। जैसे अल्लाह पाक ने तुम्हारी रहनुमाई के लिए तुम्हें बताया था कि अल्लाह पाक एक है, वो तन्हा खालिक है, सारी कुदरत उसके रूबरू सजदारेज होती है। बिल्कुल वैसे ही वो दुआओं की जानिब तुम्हारी रहनुमाई करता है कि यह जरिया है तुम तक वो सब लाने का जो तुम्हारे मुकद्दर में नहीं। वो कह चुका है कि तुम चाह भी नहीं सकते जब तक अल्लाह पाक न चाहे। तो फिर मान लो कि उसने चाहा है ऐसा होना, तभी तो वो तुम्हें यहाँ तक लाया है। उसने नामुमकिन को अब मुमकिन करना है, तभी वो तुम्हारी जुबान पर कुन की तलब लाया है। क्या पता तुम्हारी जिंदगी में मोजज़े बस एक दुआ के मुंतजर हो, क्या पता कि अब तुम्हारी चाही हुई चीज बस एक कदम के फासले पर हो। अल्लाह पाक कभी तुम्हारा सब्र, एहसास और तकलीफ जाया नहीं करेगा। अल्लाह पाक तुम्हारी जुबान को मांगने की हिम्मत तब देता है जब वो तुम्हारी दुआओं पर राजी होना चाहता है। दुआ कर ली है तुमने, जब दुआ मांगी है तो इतने बेचैन क्यों हो? सुना दिया है अपने रब को अपना हाल, दिल फिर भी ना उम्मीद क्यों हो? दुआ मांगकर भी बेसुकून हो, शक में हो कि कबूल होगी या नहीं। जब मांग लिया है अपने रब से, जब बता दिया है दिल का हाल अपने रब को, तो क्यों बेचैन हो रहे हो? सुकून से और सब्र से अल्लाह पाक के मोजज़ों का इंतजार करो। मोजज़े तो उनकी दुआओं के लिए होते हैं जो अल्लाह पाक से मांगकर फिर किसी से नहीं मांगते। दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह पाक की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का एक इशारा है। और दुआएं मांगते रहो, उसे अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। कबूलियत में देरी का मतलब यह हरगिज नहीं कि दुआ कभी कबूल नहीं होगी, बल्कि हकीकत तो यह है कि कुछ दुआएं अल्लाह पाक अपने पास संभाल कर रख लेता है और फिर बेहतरीन वक्त आने पर कुन का मोजज़ा कर दिखाता है। अल्लाह पाक तुम्हारा दिल नहीं मोड़ रहा, क्योंकि वो तुम्हारा नसीब मोड़ चुका है। जिन दुआओं पर तुम वसवसों में पड़े हो, अल्लाह पाक तो वो दुआएं पहले से ही कबूल कर चुका है। बस एक इल्तिजा
اور پھر وہ حکم کن فرمائے گا اور کوئی بھی اس کا حکم ٹال نہیں پائے گا۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ پاک کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتے ہو تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی معصومیت بھری یہ ادا بہت پسند ہے۔ جو بات تمہارے دل سے نہیں نکل رہی جان لو کہ وہ ہوگی ضرور۔ پوری دعاؤں کا سلسلہ تم جاری رکھو، اللہ پاک جانتا ہے کہ تم مانگو اور بھی تم سب کچھ جان جاؤ گے۔ ہر حقیقت سے، ہر راز سے پردہ اڑ جائے گا اور پھر تم خوش ہو جاؤ گے، تمہارا دل پرسکون ہو جائے گا۔ بس پھر تم چلتے پھرتے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہو گے۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو ہر اور بھی شدت سے اللہ پاک پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکن کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ پاک کی طرف سے ہمت آ گئی، بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے۔ اگر اللہ پاک نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر مانگنا نہ سکھاتا۔ تمہارا بار بار تڑپ کر مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے اور اب بہت جلد وہ تم سے راضی ہو کر کن بھی فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بڑا ادار سکی داتا ہے۔ جب بندہ اس رب کے سامنے 10 سوال دراز کرتا ہے تو اس انسان کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اسے حیا آتی ہے۔ جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر مانگ لو۔ ممکن ہے یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہے۔ وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے۔ تمہاری چاہت پر بس تھوڑا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا، صبر اور یقین رکھنا ہے۔ اللہ پاک کے سامنے ہر دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ ظاہر ممکن ہو یا ناممکن، کیونکہ اللہ پاک کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ اگر آپ کی آزمائش سخت سے سخت تر ہو رہی ہے تو ممکن ہے عام محبت کی منزلیں طے کر رہے ہو، ممکن ہے آپ اللہ پاک کے محبوب بندوں کی فرست میں گردانی جانے لگے ہو۔ تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا ہے وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی حد و گرو ہے اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے، بس تکلیف کی ذرا سی شدت سے ڈر جاتے ہیں۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا۔ تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ اللہ پاک ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے جب وہ چیز ہوتی ہے جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اے حالات کا بدلنا، دروازوں کا کھلنا، اے راستوں کا منزل تک لے جانا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے؟ وہ جو رہنما ہے 7 آسمانوں پر، جو شہرک سے بھی زیادہ قریب تر ہے، یہ ساری پہلیاں اسی کی ہیں۔ ان پہلیوں کے جواب وہ خود دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونی کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے، پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں رب نظر آتا ہے۔ جب اللہ پاک کسی کا خیال دل میں لاتا ہے تو اس کی جگہ میں بھی کہیں چھپا کے رکھ دیتا ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں تو بس انہی کو ملتی ہیں جو دعا کرتی ہیں۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ رات کی تنہائی میں اللہ پاک سے دعائیں مانگنا، پھر بھی قبول نہ ہونا، یہاں تک کہ تھک جانا، ٹوٹ جانا کہ اللہ پاک اب تو امید بھی ٹوٹتی دکھائی دیتی ہے۔ اے عالم دیکھ کر اللہ پاک کہتا ہے اور پھر کن کہہ دیتا ہے، قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ میرے بندے اداس نہ ہو، میں ہوں نہ تیرے ساتھ۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نوازے۔ یا اللہ پاک سن لینا، ہمارے دل میں جو مراد ہے وہ پوری فرما دے۔ میرے اللہ پاک تو ہی ایک ہے جو ہر بات سے واقف ہے، جو بن مانگے عطا کرنے والا ہے، اور تو جانتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے۔ تجھ سے بڑھ کر ہمیں کوئی سمجھنے والا نہیں، نہ ہی جاننے والا ہے۔ تو ہی ایک واحد ہے جو ہماری ہر پریشانی، ہر مشکل میں مدد فرمانے والا ہے۔ بس تو کن فرما دے میرے مولا، ہمیں نواز دے، اپنے رحم اور کرم سے ہمارے لیے آسانی فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ سنو، تم جیسا گمان کرو گے اللہ پاک کو ہو ویسا ہی پاؤ گے۔ جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ پاک کو چھوڑ کر انسانوں سے کی امید لگاتا ہے۔ جب تک اللہ پاک نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ پاک راضی ہو جائے تو پھر کچھ بھی لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے
है, वो तो बस तुम्हारी पुकार का मुंतजिर है। परेशान मत हो, अल्लाह पाक आप पर आपकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालेगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा और इंशाअल्लाह फिर आजमाइश के बाद अल्लाह पाक बेशुमार नेमतें और आसानियां अता फरमाएगा। मायूस मत होना, अल्लाह पाक है ना, वो सब अच्छा कर देगा इंशाअल्लाह। सब्र करके देखो, क्या पता अल्लाह पाक की भी वही रजा हो जो तुम्हारी है। आजमाइश तुम्हें अल्लाह पाक से मिलवाती है, दर्द तुम्हें सजदों तक ले आते हैं, तकलीफें तुम्हें तहज्जुद तक ले आती हैं, जिंदगी की हर कमी तुमसे दुआएं करवाती है और हर दुख और मुश्किल तुम्हें जानमाज तक लाते हैं। और अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही सबसे ज्यादा आजमाता है, क्योंकि वो हमें अपने करीब देखना चाहता है। तो इसलिए अल्लाह पाक के करीब हो जाओ, दिल से अल्लाह पाक का हर फैसला तस्लीम करना है। अल्लाह पाक का हर फैसला खैर और हिकमत से भरा हुआ होता है। हमने अल्लाह पाक की रजा खुशानिद हासिल करने के लिए दिल की खुशी से अल्लाह पाक के हर फैसले पर राजी रहना है। जिन रास्तों पर अल्लाह पाक तुम्हें लेकर जाता है, उन रास्तों पर तुम अकेले नहीं चलते, बल्कि वो तुम्हारे साथ चलता है। जब वो गम के हालात पैदा करता है तो वो तुम्हें उन हालात से लड़ने की हिम्मत भी देता है। वो तुम्हें खुशी में ना तन्हा छोड़ता है और ना गम में। जो करीब होता है मदद के लिए उसे ही पुकारा जाता है, और रब से ज्यादा कोई बंदे के करीब नहीं। वो सबसे पहले सुनने वाला और सबसे पहले जान लेने वाला है। उसे लफ्जों में कहने की जरूरत नहीं, उसे लिख कर दरख्वास्त देने की भी जरूरत नहीं, उसे दलीलें भी नहीं चाहिए कि हमें मदद क्यों चाहिए। उस जात तक पहुंचने के लिए बस उसे पुकारना पड़ता है। वो सबका दोस्त है, सबका मददगार है। इस बात को कभी मत भूलो कि अल्लाह पाक आजमाइश सिर्फ बुरे लोगों पर डालता है। अल्लाह पाक अपने महबूब बंदे को ज्यादा आजमाइश में डालता है ताकि जान सके कि उसका महबूब बंदा क्या करता है। याद रखें, हर रात अपने साथ सवेरा लेकर आती है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो अपने अल्लाह पाक को याद रखें और उसी से मांगे, उस पर भरोसा रखें, उसके कुन का इंतजार करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। आजमाइश के लिए चुने जाने वालों की दुआओं को भी अल्लाह पाक ने कबूलियत के लिए चुन रखा होता है। वो तुम्हें तब तक खाली नहीं करता जब तक वो उन्हें और बेहतर चीज से भरने का इरादा ना कर ले। जब भी उदास होने लगो तो खुद को यह याद दिला दिया करो कि जिसने मुश्किल दी है उसने मदद का भी वादा कर रखा है। वो आजमाता उसी चीज से है जो तुम्हें बेहद प्यारी होती है, ताकि उस चीज के मिलने की तड़प तुम्हें अल्लाह पाक से मिलवा दे। इस यकीन के साथ मांगो कि अल्लाह पाक जरूर देगा, और फिर देखो वो तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम गिनती तक भूल जाओगे। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है, और कायनात के सारे मौजज़े दुआओं से ही तो होते हैं। अल्लाह पाक हम सबकी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तुम्हें पता है तुम्हारे पास एक बहुत कीमती चीज है जो बहुत कम लोगों के पास ही होती है, और अल्लाह पाक वो चीज बस उन्हें देता है जिन्हें पसंद करता है और अपने करीब करना चाहता है। पता है वो क्या है? दूसरों की तकलीफ का एहसास, दुआ की तौफीक, दुआओं का जवाब न मिलने के बाद यकीन और सब्र। ये बहुत खास चीजें हैं। अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई एक चीज भी है तो तुम बहुत अमीर हो, अल्लाह पाक के पसंदीदा हो। अगर यह नहीं तो तुम खाली हाथ हो। मेरा रब वो है जो मशरिक वालों को देखता है तो मगरिब वालों को नहीं भूलता, जो आसमानों का निजाम चलाते हुए समंदरों का निजाम चलाना नहीं भूलता, जो रात के अंधेरों में सजदा करने वालों को देखता है तो बुराई की महफिलों से गाफिल नहीं होता, जो ऐसा माफ करने वाला है कि 100 साल के गुनाह एक पल में माफ कर देता है और पलट कर यह भी नहीं पूछता कि पलट कर तो नहीं करोगे। जब तुम अल्लाह पाक को जानने की, उसे ढूंढने की तमन्ना करते हो तो अल्लाह पाक तो तुम्हारा दिल सुकून ढूंढने में लगा देता है। जब अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि मुझसे मांगो, तो फिर इंसान क्यों मायूस होता है? फिर भी इंसान अल्लाह पाक को छोड़कर इंसानों से क्यों उम्मीद लगाता है? जब तक अल्लाह पाक ना चाहे कुछ हासिल नहीं हो सकता, और जब अल्लाह पाक राजी हो जाए तो फिर कुछ ला हासिल नहीं रह सकता। इसलिए दुआ यकीन से मांगो और फिर सब्र करो कि तुमने मालिक कायनात से मांगा है जिसके पास तुम्हें देने के लिए बसी खजाने हैं। वो तो बस तुम्हारी पुकार का मुंतजिर है। अल्लाह पाक नामुमकिन चीजों में नजर आता है जब वो चीजें होती हैं जिनके होने का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जब वो दरवाजे खुलते हैं जिनके खुलने की हमें उम्मीद भी नहीं होती, जब वो रास्ते हम उस मंजिल तक ले जाते हैं जिसका हमें गुमान भी नहीं होता। एह हालात का बदलना, एह दरवाजों का खुलना, एह रास्तों का मंजिल तक ले जाना, आपको लगता है क्या यह सब बिला वजह हो जाता है? वो जो रहनुमा है 7 आसमानों पर, जो सहरक से भी ज्यादा करीब तर है, यह सारी पहेलियां उसी की हैं। इन पहेलियों के जवाब वो खुद देता है, बस जराए मुख्तलिफ होते हैं। ना होने का होना वो तब करता है जब इंसान का यकीन जमीन और आसमान से बहुत वसी हो जाता है। फिर उस वसी यकीन में मोजिज़े समाते हैं। फिर उन मोजिज़ों में रब नजर आता है। जब अल्लाह पाक किसी का ख्याल दिल में लाता है तो उसकी जगह नसीब में भी कहीं छुपा कर रखता है, और वो छुपी हुई चीजें तो बस उन्हीं को मिलती हैं जो दुआ करते हैं। दुआ वो कर सकती है जो आप नहीं कर सकते। रात की तन्हाई में अल्लाह पाक से दुआएं मांगना, फिर भी कबूल न होना, यहाँ तक कि थक जाना, टूट जाना कि अल्लाह पाक अब तो उम्मीद भी टूटती दिखाई देती है।
आलम देखकर अल्लाह पाक कहता है और फिर कुन कह देता है, कबूलियत से नवाज देता है, मेरे बंदे उदास ना हो, मैं हूं ना तेरे साथ। तुम शिकवा करते हो कि तुम्हें तुम्हारी चाहत नहीं दी गई, वो तो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, तो वो कैसे तुम्हें गलत दे। उसकी चाहत है कि तुम उसकी चाहत पर राजी हो जाओ ताकि वो तुम्हें फिर तुम्हारी उस चाहत से भी ज्यादा नवाजे। दुआ की ताकत को कभी कम मत समझे, तकदीर और किस्मत से ज्यादा ताकत दुआ में होती है जो अर्श तक को हिला सकती है, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं, लेकिन तकदीर लिखने वाला नहीं। और अगर आपको लगे कोई चीज तकदीर में नहीं लिखी गई तो फिर भी दुआ करनी चाहिए। दुआ वो ताकत रखती है जो आपके नसीब में भी नहीं, उसे भी आपका कर सकती है। और दुआ तकदीर को उस वक्त भी बदल सकती है जब वो फैसला कुन मराल में दाखिल हो चुका हो। हम जो चीज मांगते हैं अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक को पहले से ही सब मालूम होता है। हम जिस चीज के लिए तड़पते हैं अल्लाह पाक पहले से ही उस तरफ से वाकिफ होता है। जब उसे सब पहले से पता होता है तो हमें अदा क्यों नहीं करता, क्योंकि इसलिए ही तो उसने दुआ बनाई और दुआ मांगने के लिए हमें बनाया ताकि हम उससे मांगे, उससे बात करें और उसे बुलाते रहें, उससे दूर ना हो जाएं, उसके करीब रहें ताकि वो हमारे करीब हो जाए। हम उससे मांगे और उन्हीं बातों बातों में हमारा उलझा जहन चीज से हट जाता है जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। इतनी मोहब्बत करता है अल्लाह पाक हमसे, हमारे लिए हमें गम दिखाता है और हमारे लिए हमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह पाक हर दुआ का जवाब देता है, बस जराए मुख्तलिफ होते हैं। कभी वो आपको किसी से मिलवा कर जवाब देता है तो कभी आपसे उसे दूर करके, कभी वो हवाओं के जरिए पैगाम भेजता है तो कभी अपना जवाब किसी ठोकर में छुपा देता है, कभी वो सजदे में गिराकर अपनी मसले समझाता है और कभी हाथ थमाकर सब्र का सिला देता है। आजमाइश का आना रूह का रेजा रेजा हो जाना बेवजह नहीं है। कभी तकलीफ में हो तो अल्लाह पाक को महसूस करना, फिर उसकी मौजूदगी भी दिखाई देगी और उसकी सरगोशी भी सुनाई देगी। तड़प दिल में तभी उतारता है जब वो तुम्हें याद करता है, तब वो चाहता है कि तुम उससे बातें करो, उसे अपनी कैफियत सुनाओ, सारी परेशानियां उसकी दहलीज पर छोड़ाओ, बस तुम और अल्लाह पाक रह जाएं, फिर से मुस्कुराना सीख जाओ और सब भूल जाओ। तुम तन्हा नहीं हो, तुम्हारे साथ अल्लाह पाक है और जिसके साथ अल्लाह पाक हो उसके साथ कायनात की रौनक चलती है। देखो आज अगर हमारी कुछ दुआएं अधूरी नहीं रहती तो शायद हमारे पास यह सब ना होता जो आज है। अब जब सारी हकीकत हमें समझ आ गई है तो हमें अपनी उन लाहासिल दुआओं का सोच कर खौफ आता है कि तब वो पूरी हो गई होती तो आज हमारी जिंदगी क्या होती, क्योंकि जो आज हमारे पास है वो हमारे मांगे हुए से बहुत बेहतर है और हमें हमेशा से यही चाहिए था। बस तब हम इस बात जानते नहीं थे, मगर मेरा अल्लाह पाक जानता था और उसने हमें वही दिया जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिर भले वो चीज हमें शुरू में बुरी लगती थी, लेकिन अब हम उनके साथ बहुत खुश हैं और हमें अब समझ आया है कि अल्लाह पाक से बेहतर किसी का फैसला नहीं। उसका इंतखाब हमारे इंतखाब से बहुत बेहतर दिल से अल्लाह पाक का हर फैसला तस्लीम करना है। अल्लाह पाक का हर फैसला खैर और हिकमत से भरा हुआ होता है। हमने अल्लाह पाक की रजा खुदीफ रखो, क्योंकि अल्लाह पाक के मोजिज़े तवक रखने वालों के लिए होते हैं, यानी तुम्हारे लिए सब्र और दुआएं करने वाले अल्लाह पाक को बहुत प्यारे होते हैं। अगर वो आजमाता है तो यकीन रखने वालों के लिए मदद भी भेजता है, सब्र करने वालों के लिए सिला भी तैयार रखता है। और जब तवक्कुल करो तो यह मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा कैसे, बल्कि इंतजार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा कब और कैसे। इस बात का फैसला वसीले बनाने वाली जात पर छोड़ दो। जिंदगी में दुख जिस शिद्दत का भी हो, अल्लाह पाक ने आपको आपके हिस्से का सुख भी जरूर देना है। आपका हिसाब किताब शायद गलत हो जाए, लेकिन उसके पास सारा हिसाब किताब बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद है। अगर दुख से गुजार रहा है तो सुख भी उसी के दर से ही मिलेगा। सबसे खूबसूरत रिश्ता और ताल्लुक अल्लाह पाक के साथ है, जिस पर भरोसा कभी हारने नहीं देता, जिस पर तवक्कुल कभी गम में मुब्तला नहीं करता, जिससे उम्मीद कभी मायूस नहीं होने देती, जिस पर यकीन कभी खाली हाथ नहीं लौटता, जिस पर ईमान कभी बहकने नहीं देता, जिसकी तरफ तवज्जो खामोशियां भी सुन लेता है, लेकिन उसे इजहार पसंद है बंदे का। जब बंदा कहता है ऐ मेरे रब, तो वो मुतवज्जो हो जाता है। जब बंदा कहता है तू बड़ा रहीम है तो उसकी रहमत जोश में आ जाती है। जब बंदा कहता है अल्लाह पाक मुझे माफ कर दे तो वो माफ कर देता है। कितना मेहरबान है मेरा रब की हर गुनहगार को माफ कर देता है। जिन रास्तों पर अल्लाह पाक तुम्हें लेकर जाता है उन रास्तों पर तुम अकेले नहीं चलते, बल्कि वो तुम्हारे साथ चलता है। जब वो गम के हालात पैदा करता है तो वो तुम्हें उन हालात से लड़ने की हिम्मत भी देता है। वो ना तुम्हें खुशी में तन्हा छोड़ता है न गम में। बस सब्र करो, बेशक अल्लाह पाक का वादा सच्चा है। जानते हो अल्लाह पाक तुम्हें बेबसी के मुकाम पर क्यों लाया है।
ताकि तुम अल्लाह पाक से रुजू करो और यकीन से मांगो। जब तुम दुआओं पर यकीन करना सीख जाओगे तो हर चीज जो तुम्हें अभी नामुमकिन लग रही है बकवजीर होने लगेगी। वो सब हिकमत जानता है, वो सब बेहतर जानता है, सब हालात जानता है। वो हाल और मुस्तकबिल जाहिरी पहलू और हमारी आंखों से झल पहलू सब ही जानता है। वो इल्म में कामिल है, तो हर तवक्को के बरक्स हालात पर, हर इरादे के टूटने पर खुद को यकीन दिलाओ अल्लाह पाक जानता है, मैं नहीं जानता। अल्लाह पाक से इतना मजबूत ताल्लुक बनाओ कि जिस रोज तुम अल्लाह पाक को आवाज ना लगाओ उस रोज अल्लाह पाक फरिश्तों से कह दे कि मेरे बंदे की आज आवाज नहीं आई, पता करो उसका और मेरी मदद उस तक ले जाओ, मेरा रहम उस तक ले जाओ ताकि मुझे उसकी आवाज आए और वो मुझसे कहे कि या अल्लाह मैं ठीक हूँ। जो अपने आप को अल्लाह पाक के सुपुर्द करके अल्लाह पाक के हो जाते हैं तो अल्लाह पाक उन्हें अपने सिवा सबसे बेनियाज कर देता है। फिर वो किसी के मोहताज नहीं रहते, वो बस अल्लाह पाक के दर के गुलाम हो जाते हैं। वो सब्र करना सीख लेते हैं, अल्लाह पाक की रजा में राजी रहते हैं और अल्लाह पाक की मदद उनके लिए वहां से आती है जहां से किसी के गुमान में भी नहीं होता। फिर उनके लिए रास्ते अल्लाह पाक खुद बनाता है। ये दुनियावी मोहब्बतें तो तुम्हारी आजमाइश करने आती हैं कि तुम हकीकी मोहब्बत से कितने करीब हो, और जब तुम सब्र के साथ उसकी रजा में राजी रहते हो तो वो फिर तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज पलक झपकते वापस लौटा देता है। और यह जो तुम बार बार हर किसी के सामने सब्र और जब्त का डिस्कशन कर रहे हो तो बताओ जरा क्या तुम्हारे सब्र ज्यादा है या सब्र हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का? तुम जो इस आजमाइश की घड़ी में दिनों और सालों का हिसाब रखे हुए हो तो बताओ जरा क्या तुम्हारी आजमाइश ज्यादा तवील है या हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जब उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुदाई काटी। जो रास्ते अल्लाह पाक से जुड़ जाते हैं वो बेहतरीन हो जाते हैं। अल्लाह पाक की तरफ जाने वाला हर रास्ता दिल को सुकून बख्शता है। ऐसा महसूस होता है अकेले होने के बावजूद भी कोई साथ है। इंसान की तमन्ना नहीं है क्योंकि अल्लाह पाक साथ है, कोई छोड़ दे तो तब भी दिल तसू में डूबता चला जाता है। हम मसलियत समझकर सिकवे के अंबार नहीं लगाते, वो रहमान उससे जुड़ने वाले गनी होते हैं। जो उससे जुड़ता है वो उसी के दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। जिंदगी के चारों अंतरा में मोहब्बत इलाही होती और हम होते हैं, बस यह अल्फाज होते हैं, मुबारक हो तुमने अपने रब को पा लिया। नाज़रीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल साज मोबाइल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।